Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have already talked about that. Now, we are going to learn about chapter 11, that is devotion towards the Almighty, right? Now we are going to start chapter 11, and this is the last chapter of the history, that is devotion towards the Almighty. Now in the next video or in the next to next video, we are going to start civics or else geography. या सिविक्स स्टार्ट करेंगे या जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, बट ये हमारे हिस्ट्री का क्या है, लास्ट चैप्टर है, दैट इज डिवोशन टूवर्ड्स द ऑलमाइटी, राइट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस वे ऑफ वर्शिप, राइट। डिफरेंट डिफरेंट देखो रिलीजन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग अपने गॉड की कैसे वर्शिप करते हैं, राइट। जैसे कि हम जाते हैं चर्च में, तो चर्च में ऑलमोस्ट कैंडल रखी जाती है ना। वहाँ पे आपने दिए नहीं देखे होंगे, हम वहाँ पे क्या करते हैं, कैंडल रखते हैं, राइट। और अगर हम सपोज कि मंदिर में जाए तो हम वहाँ पे दिया भी करते हैं, अगरबत्ती भी करते हैं, है ना। और सपोज कि हम गुरुद्वारे जाएं तो वहाँ पे ना दिया होता है ना अगरबत्ती होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेज लर्न करेंगे रिलेटेड टू वर्शिप, राइट। So now we are going to start this chapter. The above picture must have made you that wonder, when did the people start praying and singing a religious song in this way? This deep devotion towards a god is the gift of the bhakti and Sufi movements that started in the 8th century. Let us take a peek into that era and understand how all this reached us. In olden days, common people stayed away from education. Traditionally, members of the working class underwent a vocational training. People were religious, but superstitious was also widely prevalent during that time. Due to this, undue advantage was taken by many opportunities. People weren't scared of kings as much as of religious heads and saints. Religions become a superficial. Idol worship had become a widespread through the people believed in and respected a religious book like the Vedas, Puranas, etc. They were ignorant about the main philosophies they propagated. Charity was considered as a noble need. Hindus and Muslims considered as a charity part of their religious belief. Ghosts, spirits, apparitions, etc. were believed in and even worshipped. A few superstitions also become widely spread among the people. Through faith have had lessed some opportunistic priest, manualists, saint, witch doctors, etc. starting taking advantage of the ignorance of the people and their blind belief to make their own lives more comfortable and luxurious. Let us learn about the bhakti movement that had started during that period. सो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे हमारे डिफरेंट वेज वर्शिप के बारे में। जैसे कि 8th सेंचुरी से हमारा स्टार्ट हुआ है भक्ति मूवमेंट, वैसे ही लोग उस टाइम पे एडुकेशन से इतने नहीं रिलेटेड होते, इन सब में जाते थे, भक्ति करे, पाठ करे, पूजा करे, वेदास के बारे में पढ़े। बट उसके साथ सुपरस्टिशंस जो है वो भी स्टार्ट हुआ, राइट। ऐसा नहीं है कि सुपरस्टिशंस नहीं, अंधविश्वास है, लोगों ने अंधविश्वास में भी बहुत बिलीव करते हैं। जैसे ही रिलीजन्स जो है वे डिफरेंस वे टू भक्ति करने का स्टार्ट हुआ, उसी तरह से क्या हो गया कि भाई है ना, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास करना भी लोगों में इतना ही जागरूक हो गया था। जितना लोग भक्ति पाठ पूजा करते थे उतना ही लोग अंधविश्वास में भी विश्वास करते थे, राइट। वो ज़्यादा से ज़्यादा किंग और क्वीन से नहीं डरते थे, जितना उनको ऐसा लगता था कि कोई बाबा आके उनको शार्प दे के जाएगा, शाप दे जाएंगे या उनको कुछ बोल देगा, उससे वो डर जाते थे और वो उस डर की वजह से मर जाते थे।
राइट। तो लोगों को इतना मतलब वो हो गया था कि भाई नहीं, जैसे कि भक्ति पाठ पूजा एक साइड है, उसी तरह से जो लोग भाई बिलीव करते हो कि इस बाबा के पास जाने का, या ये हमारे साथ ये कर दे, या किसी ने हम पे काली नज़र कर दी हो, या किसी ने हम पे नज़र लगा दी हो, ये इन सब चीज़ों पे भी बहुत बिलीव करते थे। तो जैसे टाइम आता गया तो लोगों ने ये सब इग्नोर करते गए अंधविश्वास को। देन आफ्टर है ना, इतना आगे नहीं बढ़ने का, ये सब अंधविश्वास की तरह होता है वगैरह, और अपनी धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ जो है वो सूट उन पे होने लगी। एंड वो ट्रू है, हमें जितना हो सके उतना अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए। नो डाउट काफ़ी कोई चीज़ें साइंस से रिलेटेड होती भी है, बट सब सरी होती है वो भी कंपलसरी नहीं है। ये छींक आए या बिल्ली काट गई रास्ता, वो कोई बिलीव करने जैसा नहीं होता। बिल्ली काट के गई तो बिल्ली अपने रास्ते पे जा रही थी और निकली तो वो काट के गई, उस हिसाब से हमारे काम कोई रुकने नहीं वाले हैं, राइट। और ना ही कोई नेगेटिव थिंक क्या होता है कि जो हम थॉट्स सोचेंगे वही होगा, राइट। हम अपने माइंड को जो कमांड देते हैं माइंड वही करता है। हम नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव ही रहेंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे। वो हमारे माइंड के थॉट्स के ऊपर डिपेंड होता है, नॉट इन दिस ऑल थिंग्स दैट भाई बिल्ली रास्ता काट के गई, दूध उबल गया तो रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। अब कभी अपन अगर गैस फुल पर रख के आएंगे, सिम पे नहीं करेंगे तो दूध तो उबल नहीं वाला है, वो फैक्ट बात है। तो अब उससे कुछ गलत होगा या कुछ सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। दाईं आँख फड़के तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, बाईं आँख फड़के तो राइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भी होता है। तो लोग जितना सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वास में विश्वास करने लगे थे, उसी तरह भक्ति भाव में भी विश्वास करते थे, उसमें रहते थे। बट धीरे धीरे टाइम जाता गया, मॉडर्न वैल्यूज आती गई, तो लोग अपनी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल जीने लगे, उनको जिस हिसाब से सही लगा वो उस हिसाब से लड़ने लगे। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग उसमें से भी निकलते आ गए। सब आधे लोग जो है वो पूरा का पूरा साइंस में बिलीव करने लगे कि भाई एवरीथिंग इज साइंस, बट ऐसा नहीं है। गॉड इज देयर, भगवान है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रीथ, तो ब्रीथ जो दी गई है, श्वास जो दी गई है, वो भगवान ने दी है। फिर आप लोग डॉक्टर को 5 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दोगे ना, तो भी वो एक श्वास भी नहीं दे पाएंगे डॉक्टर्स, वो बोलेंगे भगवान के हाथ में है। तो इतनी मोर कंफर्टेबल लाइफ से, लग्जरियस लाइफ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान नहीं है। भगवान है, गॉड इज देयर ओनली, एंड ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बट अंधविश्वास है, नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, वो हमारे मन के ऊपर, हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। वो कोई भी चीज़ से रिलेटेड ना हो, वो भगवान के रिलेटेड ना हो। जो चीज़ें वो दैट्स वी आर थिंकिंग एंड वी आर डूइंग, सो इट्स डिपेंड्स ऑन अस, राइट। तो ट्रू फेथ जो होता है वो आगे आगे जाके मोर कंफर्टेबल लाइफ होने के साथ वो हमें कहीं ना कहीं कम करनी नहीं चाहिए। फेथ हमें हमेशा रखना चाहिए। लाइक सम अपॉर्चुनिस्टिक लाइक प्रिस्ट, मॉलवेज, सेंट, witch doctors etc started taking advantage of the ignorance of the people and then blind beliefs to make their own life more comfortable and luxurious। हमें हमारे जो देखो कई कबार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कई ढोंगी बाबा भी होते हैं, राइट। गलत गलत बोल के लोगों को डरा के पैसे भी ले लेते हैं, तो वो उनका क्या हो गया, वन टाइप ऑफ बिजनेस हो गया है। तो उस तरह से में भी हमें नहीं जाना चाहिए, किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि नहीं भी इस बाबा ने ऐसे बोला है तो ये तो सही हो जाएगा, अभी हमें ऐसे करना चाहिए, अभी हमें ऐसे करना चाहिए। नो, वी शुड नो गो देयर, बिकॉज उनको अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीनी हो, उनको लग्जरियस लाइफ जीनी हो, तो पैसे मिलते हो तो ऐसा होता हो। बट ऐसे काफ़ी अपने धर्म पे चलने वाले, काफ़ी जो भगवान की अवस्था में पहुंचने वाले भी होते हैं, पर उन सब में हमें खोजना है कि कौन सही है कौन गलत है, राइट। हमें थोड़ी सी आइडिया लग जानी चाहिए कि बारंबार जो हर एक चीज़ के लिए रुपीस मांगते हैं, भाई ये कर दो तो इतने पैसे मिलेंगे, ये कर दो तो इतने पैसे मिलेंगे, राइट। तो उस चीज़ से हमें ऐसे सीखना चाहिए कि वो सही नहीं है।
एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि वी शुड बिलीव ऑन द ओनली गॉड इज देयर, हमें उन पे ही विश्वास रखना चाहिए। ये जो बहुत ही डीप में जाएंगे, भाई इस बाबा को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, तो उससे क्या हो, हमें डर पैदा भी होता है, राइट। और आपने मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही होगा कि किस तरह से फालतू का डरा वरा के पैसे ले लेते हैं वगैरह करते हैं। तो इस चैप्टर थ्रू हमें ऐसे ही मिलेगा लर्न करने का कि हम डिफरेंट वेरियस रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे, और जो पहले के संत थे जो बहुत ही अच्छी अवस्था वाले थे और कौन से धर्म वाले थे, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज ऑलमाइटी टूवर्ड्स गॉड. Now in that we are going to learn some Vallabhacharya, but here we are going to learn some one paragraph is also left. You have already learned about the advent of Muslim during the Sultanate era in the previous chapter, that we have already learned about the Sultanate era. Though they spread Islam in India, Hinduism remained the main religion and remained a status. All religion felt that need to spread awareness to remove the ignorance. For they sent started a different religious revolutions in religions and cultural etc. Now let us learn about this. जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे ही संतलन तेरा आया तो वैसे ही मुस्लिम जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग द सल्तनत एरा, उस टाइम पे जैसे संतनत एरा आया तो रिलीजन्स डिफरेंस हो गए, मुस्लिम रिलीजन्स, हिंदू रिलीजन्स, तो उस रिलीजन्स के हिसाब से डिफरेंट सेंट आए और उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से उन्होंने ऐसे अवेयरनेस दिखाई है कि नथिंग इज सुपरस्टिशंस, राइट। अंधविश्वास में हमें नहीं जाना चाहिए, टोटली फैक्ट क्या है रिलेटेड टू गॉड हमें उसमें जाना चाहिए. So, first we are going to learn about Vallabhacharya. Vallabhacharya was born in 1479 CE in Champaran in a Telugu Brahmin family. So, when was Vallabhacharya born? He was born in 1479 CE in Champaran in a Telugu Brahmin family. He followed a Vaishnava dharma. He followed the Vaishnava, the religion of his family. He studies Vedantas, Darshanam, Sutras, Dharma Shastra, Puranas, and history in the depth in Banaras. He traveled around the whole world to propagate his religion's belief. He went from Rameshwara to Haridwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the Pushti Marga sect. During his pilgrimage, he organized Srimad Bhagavad Katha, and the places where these discourses were organized is known as a Baitak. It's known as a Baitak. According to him, Brahma is a pure and unbounded soul. Krishna is the only Purna, Purushottam, Parabrahma, that is God. He therefore felt that the bhakti was the only way to seek a freedom from the cycle of birth and death and to attain the salvation. These religions could be followed by anybody without any distinction of caste, color and creed. Thus, Vallabhacharya importance and contribution in the bhakti movement is immense. Now, first is Vallabh Acharya. Now we are going to learn something about the Vallabh Acharya. First, where he was born. So, he was born in Champaran, Telugu Brahmin family. In the year is 1479. 1479 year में चंपारण तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ. किनका, वल्लभाचार्य. कौन से धर्म को वो फॉलो करते थे, वैष्णव. अब वैष्णव धर्म जो होते हैं वो ऑलमोस्ट है ना कृष्ण जो होते हैं ना कान्हा जी, उनको बिलीव करते हैं, उनमें बिलीव करते हैं. एंड वो कान्हा जी को घर में रखते हैं, उनकी स्थापना करते हैं एज अ मेंबर. जैसे कि हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, उसी तरह से कान्हा जी को वो विरामत करते हैं. एंड उनको वैसे ही जैसे कि कोई घर पे न्यू थिंग्स आई या कोई चीज़ आई या खाने की, तो पहले उनको गिफ्ट की जाती है, उनको खिलाया जाता है, फिर ही वो खाते हैं, राइट.
तो अब वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, इट मीन्स कि वो कृष्ण जी को बिलीव करते थे, राइट। तो उन्होंने स्टडीज वेदांत किए, धर्मशास्त्र किए, पुराणस किए, हिस्ट्री, उन्होंने बहुत ही डीप में पढ़ाई की। फिर उन्होंने खुद के जो धर्म हैं वैष्णव धर्म, उन्होंने उनको प्रोपोगेट किया। प्रोपोगेट मीन्स अपने रिलीजन्स का जो अवेयरनेस होती है, जो लोगों में नहीं होती थी, वो उन्होंने बढ़ाई कि क्या वैष्णव धर्म है, किस तरह से भक्ति भाव में लोग डेप्थ में जाते हैं, क्या कर्म है, क्या कर्म स्थापना है, किस तरह से लोग जन्म लेते हैं तो वो अपने कर्म के हिसाब से लेते हैं। उनके बारे में उन्होंने क्या किया, लोगों को बोलना स्टार्ट किया, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि सप्ताह रखते हैं, राइट। देन सप्ताह में क्या होता है कि भैया ना 7 के 7 दिन है ना, वो गीता जो होती है उनके बारे में बताया जाता है, भगवत गीता में जो लिखाया गया है उनके बारे में बताया जाता है, राइट। उनके सत्संग किए जाते हैं। तो तब क्या होता है, पब्लिक होती है ना, गैदर पब्लिक होती है एंड लोग वहाँ पे सत्संग वगैरह रखते हैं। एंड जो आचार्य होते हैं जो हमें धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, हमारी जो रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम सप्ताह रखते हैं ना, उसी तरह से वल्लभाचार्य ने हर एक जगह पे इसी तरह अपने धर्म का जो है वो क्या कहते हैं कि ज्ञान देने लगे लोगों को, और लोगों को अवेयर करने लगे कि भगवान एक्चुअली है क्या, राइट। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्या करते थे, वो श्रीमद् भगवत कथा की जो भी प्लेसेस पे वो जाते थे वहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा के बारे में बताते थे कि कृष्ण जी ने का जो श्रीमद् भगवत गीता पे पूरा का पूरा ज्ञान लिखा गया है वो कैसे है, क्या है, किस तरह से है। जैसे कि महाभारत है तो महाभारत में जो अध्याय थे, पहला अध्याय, सेकेंड अध्याय, थर्ड अध्याय, जो सारे अध्याय थे उस हिसाब से कैसे पूरी महाभारत चली। एंड लास्ट में कैसे कि भैया ना क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे और अर्जुन ने जो था उसने ये कौन है, ये अपना दुर्योधन का क्या किया कि वध किया, मतलब वध इन द सेंस कि उसको मारा, और किस तरह से कृष्ण जी साथ थे धर्म के, उनके हिसाब से वो पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत कथा जो है वो बोलते थे और लोगों में ज्ञान देते थे कि व्हाट इज़ ट्रू गॉड, राइट। तो उसको वो क्या बोलते थे, बैठक बोलते थे। बैठक कैसे, जैसे कि मैं सपोज कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लास ले लो, अब क्लास में टीचर क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, तो मैं एक्सप्लेनेशन कोई भी चैप्टर का कर रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, यू आर हियरिंग ऑल दिस थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बैठक। उसी हिसाब से कहीं पे सप्ताह रखते हैं तो ज्ञान देते हैं, जो संत या जो भी महात्मा जो भी आते हैं वो ज्ञान देते हैं, तो हम सब कैसे नीचे बैठ के सुनते हैं, उसको बोलते हैं बैठक। तो उसी तरह से विच इज़ वेर नोन एज बैठक। अब उनके हिसाब से ब्रह्मा जो है वो इज़ अ प्योर एंड अनबाउंडेड सोल। ब्रह्मा विष्णु महेश आपने नाम तो सुने ही होंगे, तो ब्रह्मा जी जो है वो प्योर है, अनबाउंडेड सोल है, क्या है, प्योर। कुछ भी कहते हैं ना कि भाई हम कैसे बोलते हैं प्योर सोल, कुछ भी खोट खपट या कुछ भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचने का, या सही नहीं किसी के बारे में हमेशा गलत ना करने का, इवन दो सही के राह पे चलने का, व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ प्योरिटी, वो देखने के। जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं होता है सही क्या होता है गलत क्या होता है, सच क्या होता है झूठ क्या होता है, वो एकदम कैसे प्योर होते हैं। तो हम बोलते हैं ये तो है ना बच्चों में भगवान बसते हैं। क्यों हम ऐसे बोलते हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, बिकॉज के उनमें बसते हैं। उसी तरह ब्रह्मा जी है वो क्या है, प्योर है, क्लीन है, कोई भी छल कपट नहीं। एंड कृष्ण इज ओनली द वे, पूर्णा पुरुषोत्तम परब्रह्मा, दैट इज गॉड, एंड कृष्ण दैट इज अ गॉड। जैसे कि कृष्ण आपने देखा होगा तो जब महाभारत चालू थी तो उन्होंने कैसे दिया था, किसको ज्ञान दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को ज्ञान दिया था। देन उन्होंने किनको, उनको भी ध्यान दिया था, तो गुरु द्रोणाचार्य को ध्यान दिया था, अर्जुन को ज्ञान दिया था। तब उन्होंने अपने सारे के सारे रूप दिखाए थे ना। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, तो सामने मेरे ताऊ जी हैं, सामने मेरे गुरु जी हैं, सामने मेरे चाचा जी हैं, बड़े भाई हैं,
राइट। जो युधिष्ठिर थे ये सब तो एक साथ ही थे 5 पांडवों में, पर जो 100 जने थे कौरवों वो उनके साथ थे, तो वो थे तो उनके चाचा की बेटी ना, कजिन्स थे, वे कजिन्स, राइट। तो उन्होंने कृष्ण जी ने, अर्जुन ने कृष्ण जी से नहीं पूछा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये धर्म के खातिर सही है। तो कृष्ण जी ने क्या बोला था कि तुम कर नहीं रहे हो, मैं तुमसे करवा रहा हूँ, राइट। फिर उन्होंने पूरा का पूरा जो स्वरूप है अपना, वो पूरा का पूरा कृष्ण जी ने किनको दिखाया था, तो अर्जुन को दिखाया था। जब गुरु द्रोणाचार्य का वध करने का टाइम आया तभी भी उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने बारे में उन्होंने बताया था कि मैं ही हूँ, आज सच भी मैं हूँ, यहाँ पे सुबह भी मैं हूँ तो शाम भी मैं ही हूँ, हर एक पौधे में हर एक जीव में भी मैं ही बसा हूँ, राइट। वो उन्होंने बोला था तुम में भी मैं बसा हूँ, मेरे में भी मैं बसा हूँ, तो ये जो है पर ब्रह्मा पूरी सृष्टि है वो मैं ही हूँ। और अगर हमें सतयुग का क्या कहते हैं कि भाई ये जो झूठ खोट कपट जो गलत हो रहा है उसको पूरा बंद करवाना है, तो मैं ही तुमसे ये सब करवा रहा हूँ। तो ओनली द गॉड इज पूर्ण पुरुषोत्तम हु इज ओनली द कृष्णा, द कंप्लीट बोलते हैं ना, तो वही गॉड है। क्यों शिव जी हो कि कृष्ण जी हो या ब्रह्मा जी हो, हम सारे भगवान का नाम लेते, लास्ट में हम क्या बोलते कि एक ही है। तो ये सब जो है वो कौन है, एक ही है, बट उनके नाम उनके पंथ क्या है, अलग अलग है। हम गुरु क्या कहते हैं, गुरु नानक जी बोले कि हम कृष्ण जी बोले कि हम अल्लाह बोले कि राम बोले, वो सब एक ही है, बट उनके नाम क्या है, अलग अलग है, राइट। तो उन्होंने ये जो भक्ति की ये जो भावना जो होती है, साइकिल जो होती है पूरी की पूरी, उन्होंने लोगों में उनका ज्ञान दिया, उनके बारे में उनको समझाया कि रिलीजन कैसा है। और इसमें कोई कास्ट, कोई कलर, कोई ग्रिड से कोई रिलेट नहीं करता है, कोई भी धर्म या कोई जात पात नहीं होता। हमें जिसमें बिलीव करना वो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम का है तो ये कृष्ण के मंदिर पे नहीं आ सकता, या हम हिंदू है कि मुस्लिम के मंदिर में या क्या कहते हैं कि मस्जिद में नहीं जा सकते। ऐसा कोई भी भगवान ने नहीं किया। हमने डिविजन्स किए, हमने रूल्स डिवाइड किए हैं। द गॉड इज ओनली द वन। इसीलिए इसमें कोई कास्ट, कलर या ग्रीड कोई भी रिलेट नहीं करता है। इम्पोर्टेंस क्या है कि भक्ति जो है, इम्पोर्टेंस क्या है, भक्ति भाव जो है, गॉड जो है, उनके जो पंथ है, जैसे कि सच बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, हमेशा हमारे हम सबके जितने भी लोग उनके साथ सही करने का, गलत नहीं करने का वो सिखाता है, तो वो होना ज़रूरी है। तो वो सब जो था वो किसने ज्ञान दिया, तो वल्लभ आचार्य ने किया, राइट। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो किसके बारे में था स्टूडेंट्स, वल्लभ आचार्य के बारे में। उनका बोर्न कब हुआ, 1470 सीई में हुआ, चंपारण में हुआ, कहाँ, तेलुगु फैमिली, तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में हुआ, राइट। और उन्होंने किनका ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया श्रीमद् भगवत कथा का। उन्होंने सब जगह क्या दिया, ज्ञान दिया कि श्रीमद् भगवत कथा है क्या, क्या ब्रह्मा है, क्या कृष्ण है, और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हर एक जगह से लोगों को ज्ञान देने लगे, और उनको ये बताने लगे कि कोई भी कास्ट या कलर से, ग्रिड से कोई रिलेटेड नहीं करता, हम सब इसमें जुड़ सकते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा किनके बारे में, वल्लभ आचार्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, राइट। सो चैतन्य महाप्रभु वॉज द लास्ट गुरु और द प्रीचर इन द आचार्य ट्रेडिशन इन वैष्णव। अब वैष्णव धर्म के जो लोग हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु जो थे वो लास्ट गुरु और प्रीचर थे, आचार्य थे ट्रेडिशन में। ही वॉज बोर्न 1485 सी, उनका बोर्न हुआ था 1485 सी इन द फेमस एजुकेशनल place Navdeep, that is Nadia, in Bengal. He became a well known because of his love for meditation. The depth of his devotion knew no bounds. He popularized the chant of
the Hare Krishna Maha Mantra within a short span. The mantra spread all over the Bengal. People of any caste, people even people of any caste would join his kirtan mandali. People even started having a kirtan in their homes. Sorry. He spread the message of Krishna Bhakti in different corners of different states. He propagated the sect without any distinction on the basis of caste, color, and creed in such a way that it was created integration and a brotherhood among the people. He asked the people to pass their days in God's service and chant his name. अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वैष्णव धर्म के ट्रेडिशंस के लास्ट प्रीचर थे, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लोगों को बताया और उनके बारे में ज्ञान दिया. उनका बोर्न हुआ था 1485 में बंगाल में. दैट वाज अ फेमस प्लेस, दैट नवदीप, नाउ इट इज़ नडिया. सो वो बहुत ही वेल नोन थे बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडिटेशन. वो मेडिटेशन बहुत करते थे एंड उन्होंने डेप्थ डिवोशन पा दी थी. जैसे कि मैंने आपको हम बात करें गौतम बुद्धा या महावीर स्वामी की, तो उन्होंने बहुत ही डीप मेडिटेशन ही तो किया था. फिर उनको जो डीप मेडिटेशन से उनको जो डेप्थ, उनको जो नॉलेज मिली, उन पे जो भगवान की कृपा बरसी, उससे उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया. राइट. उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी इस तरह से लोगों को ज्ञान दिया. एंड उनका फेमस आपने सुना ही होगा मंत्र हरे कृष्ण राइट, हरे राम. तो कृष्ण का जो ये चैंटिंग है हरे कृष्ण, ये लोगों को ये ज्ञान देते थे कि हमें हमेशा कृष्ण के जो नाम की क्या करनी चाहिए, चैंट मंत्र, नाम जपना चाहिए. और उन्होंने भी लोगों को बोला कि विथाउट, देखो उनके हिसाब से भी कास्ट कलर ग्रिड कुछ मायने नहीं रखता था और लोगों को कीर्तन मंडली में वो भी इस तरह से ही जोड़ते थे. एंड उनके हिसाब से भी नाम जपना लाइक हरे कृष्ण वही हमें भगवान तक, गॉड की सर्विस जो है वो हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है. उनके हिसाब से भी यही था. तो here it is written, see, he propagated this sect without any distinction on the basis of caste, color and greed in such a way that created integration and brotherhood among the people. उनके हिसाब से कास्ट, कलर या ग्रीड के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं पा सकती. हमें कोई रिलीजन, हमें कोई डिफरेंट धर्म के हिसाब से नहीं करने का. बस लोगों में एकता बनी रहे, दे विल बी एन यूनिटी. उसमें कोई धर्म या कोई कास्ट नहीं है, सब इक्वली है और इक्वल ही तरीके से रहें. उनके हिसाब से यही था कि ही आस्क्ड टू द पीपल पास देयर डेज इन गॉड सर्विस एंड चैंटिस. ने हमें हमेशा अपने पूरे के टाइम में हिसाब से हमें जो लोगों को खुद के जो डेज जो हमें ज़िंदगी मिली है वो हमें गॉड के सर्विस में, जिन्होंने हमें लाइफ दी है, उनके नाम से नाम बोल के ही बितानी चाहिए. चैंट हिज नेम, लाइक चैतन्य महाप्रभु कौन सा चैंट करते थे, हरे कृष्ण राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट चैतन्य महाप्रभु. वो लास्ट प्रीचर थे वैष्णव धर्म से. राइट. उन्होंने भी कृष्ण का जो नाम है वो हर एक जगह पे उन्होंने प्रोपोगेट किया. उन कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया. वो हमेशा लोगों को कृष्ण मंडली से ज्वाइन करते थे. राइट. और उनके हिसाब से नाम जपना जो हरे कृष्ण है या सपोज कि राम जपो या कोई भी नाम जपना वो बहुत ही ज़रूरी है. दैट इज़ गॉड सर्विस. वो हमें गॉड को इतना, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमें उनका नाम लेना ज़रूरी है. उन्होंने लोगों को ये सब सिखाया. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वल्लभाचार्य के बारे में एंड चैतन्य महाप्रभु के बारे में. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में. ठीक है. सो चलो आज हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कंटिन्यू करेंगे. सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.